today we'll continue the same chapter that we have started. It's fundamental unit of life of class 9 biology. So in this chapter we have discussed about the definitions of cell. Then number 2 we have discussed about the discovery of cell. Next in the third point we have also discussed about the parts of cell that we have to continue this today. So in parts of cell we have discussed cell membrane or plasma membrane. Then in the second we have discussed cell wall. Today we have to start with nucleus. Okay. Here I have written one keyword, that is plasmolysis, which we have already discussed in the previous videos. Okay. In the previous video we have already discussed about the plasmolysis. Okay. I have given you the short point and also we have discussed. So here I have given you the definition of plasmolysis. Okay, before going to the third part of the cell, let's discuss about the plasmolysis. Just we'll recall that. So here plasmolysis means what? Plasmolysis, here the definition I will read first. So the phenomenon of shrinkage of protoplasm from the cell wall due to exosmosis in a plant cell when placed in a hypertonic solution is called plasmolysis. प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है कि एक फेनोमेनन है ये, जैसे मान लो ये एक सेल है, प्लांट सेल में सबसे ऊपर कवरिंग और एक रहता है जिसे हम बोलते हैं क्या? यस, ऑफ कोर्स सेल वॉल. दिस इज व्हाट? सेल वॉल. देन द इनर लाइनिंग वी हैव, ओके, इनर लाइनिंग वी हैव which is attached with the cell wall, that is cell membrane. Cell membrane. Now in the middle there is a nucleus. So if when this cell membrane, if it gets shrink, ये जब cell membrane मान लो अगर shrink हो जाता है due to exosmosis. Exosmosis का मतलब क्या है कि जब सेल से वाटर रिलीज हो जाता है बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. ओके, when the water from the cell of the plant cell, if water releases H2O, water releases from the cell inside of the cell to the external environment due to hypertonic solution. Hypertonic solution डालने की वजह से अगर plant cell से जो inner में plant cell के अंदर जो water है वो अगर release हो जाता है, अगर external environment में आ जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाता है. श्रिंक होके एकदम सेल वॉल से अलग हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. इसी फेनोमेनन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. ओके, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल दैट वी विल डिस्कस टुडे इज न्यूक्लियस. Now nucleus is the most important part of the cell, so it's also an important topic to be discussed. Now nucleus क्या है? Nucleus जैसे ये एक सेल है, मैंने यहाँ सेल ड्रॉ किया है, क्या आप बता सकते हो which cell it is? Is it plant cell or animal cell? This is animal cell. Why? Because हमें मालूम है animal cell का outer covering cell membrane होता है. प्लांट सेल का तो सेल वॉल होता है, which cell wall is not present in my drawing. So that means this is the animal cell, isn't it? Where the cell membrane is the outer covering. So this is the outer covering is called as cell membrane or plasma membrane also. Then the inner portion, this portion is called as cytoplasm, that we will be discussing in the further classes. Then nucleus. ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक डार्क कलर का राउंड क्या है, कलर का एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही सबसे बड़ा पार्ट होता है सेल का. बाकी जितने भी ये साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे जो हम फर्दर क्लास वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो उनमें से सबसे बड़ा ये न्यूक्लियस ही होता है जो डार्क कलर का डायरेक्टली visible होता है. Not by our naked eyes. Cell cannot be seen by our naked eyes. Particular single cell.
Okay, we have to give added to our eyes like माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप भी बहुत अलग अलग तरीका का होता है. अगर आप स्कूल में कंटिन्यू करते हो, आते हो अभी, तो आफ्टर दिस पेंडेमिक सिचुएशन आई विल शो यू. ओके, सो माइक्रोस्कोप जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है. उसके अंदर जब हम सेल को स्टडी करते हैं तो सबसे पहला जो डार्क कलर का स्पॉट दिखाई देगा दैट इज न्यूक्लियस. ओके, और ये न्यूक्लियस को मैंने यहाँ मान लो जूम करके आपको ड्राइंग करके दिखाया. ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का क्या क्या कंपोनेंट्स है या पार्ट्स है, दैट विल बी डिस्कसिंग. सो हियर आई हैव रिटन about the nucleus, the region which appear darker than any other region of cell or cytoplasm, and which is generally located at central position of the cell is known as nucleus. तो जो हमारा सेल है, सेल में जो एक रीजन में जो डार्क कलर का स्पॉट दिखाई देगा, जो सबसे डार्क होता है, ये सेंट्रल पोजीशन में रहता है, तो उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं. एंड इट इज द लार्जर पार्ट ऑफ द सेल. ओके, देन कंपोनेंट्स ऑफ सेल. तो पहले स्ट्रक्चर देख लो. स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ जैसे मैंने जो ये न्यूक्लियस ड्रॉ किया है, आप देख रहे हो, ये जो मैंने डबल आपको ऐसे डायग्राम दिखाई दे रहा होगा. तो न्यूक्लियस क्या होता है, एक्चुअली जो न्यूक्लियस है वो कवर्ड होता है बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जैसे सेल इज कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन से थिन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. उसी तरह से न्यूक्लियस भी क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड अप होता है. एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर का होता है. ठीक है, डबल लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कवर्ड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर में आपको एक डार्क कलर का स्पॉट दिखाई देगा, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस. एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ जंबल पूरा एकदम सब्सटेंस कुछ दिखाई देगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, और वो बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, एकदम जंगल में रहता है. सो दैट इज नोन एज क्रोमेटिन फाइबर्स. ओके, ये क्रोमेटिन फाइबर्स होता है. और न्यूक्लियस के अंदर में, ओके, इनसाइड द न्यूक्लियस सम substances, fluid like substance is present. Fluid means the liquid like the लिक्विड से ज्यादा थिक होने वाला को फ्लूइड बोलते हैं. सो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर सेल. ओके, तो यहाँ जैसे लिखा है मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कौन सा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो इट इज द डबल लेयर ऑफ कवरिंग. ओके, देन नेक्स्ट इज क्रोमेटिन फाइबर. क्रोमेटिन फाइबर मींस ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा उसे बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर. So these are fine fibers or net-like structure present inside the nucleus. ठीक है, तो ये सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है. और यही जब क्रोमेटिन फाइबर्स जब क्या होता है सेल डिवीजन के समय पे, जब सेल डिवाइड होता है, व्हेन सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सेल्स ना, सेल डिवीजन के समय में क्या होता है, यही क्रोमेटिन फाइबर्स क्या करते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर्स इस तरह से क्रोमोसोम्स बनाते हैं. क्रोमोसोम भी क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बट ये पर्टिकुलर इसका स्ट्रक्चर होता है, देन इट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. आपने क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ा है अबाउट द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओनली. सो इट कंटेन्स लाइक डीएनए. ये जो क्रोमोसोम्स होता है इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है. एंड डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, जीन होता है. ठीक है, क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए. और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, जीन. जिसके जीन क्या है, जैसे हम बोलते हैं दिस चाइल्ड, दिस बॉय और a girl is
है या कुछ फादर जैसे होता है, कुछ मदर जैसे दिखने में होता है। सो वो क्यों होता है? इस जीन के वजह से। और जीन कहाँ होता है? डीएनए में होता है। और ये जो डीएनए क्या बनाता है? ये क्रोमोसोम्स बनाता है। क्रोमोसोम कैसे बना? यही जब क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीजन के समय टूट जाता है, मैच्योर होता है, तो ये बनते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, देन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज द डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर में एक डेंस डार्क कलर का आपको स्पॉट दिखाई देगा, दैट इज व्हाट? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस क्या करता है? काम क्या है? जैसे हमने पढ़ा था सेल क्या का बना हुआ है? सेल बना हुआ है प्रोटीन का। प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है? राइबोसोम। राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल से जो फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम्स उसमें प्रेजेंट होता है या राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है, और ये राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और उसी से सेल का फॉर्मेशन होता है। सो देन नेक्स्ट इज न्यूक्लियर सेल। न्यूक्लियर सेल मैंने जैसे बताया द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। The fluid present inside the nucleus is called nuclear cell. It is rich in protein. और ये जो न्यूक्लियर सेल मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर में जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है, थोड़ा स्टिकी या वाटरी टाइप सब्सटेंस जो होता है, उसे हम न्यूक्लियर सेल बोलते हैं। और ये न्यूक्लियर सेल क्या होता है? इसमें प्रोटीन से रिच होता है। ये प्रोटीन का बना हुआ रहता है, प्रोटीनियस होता है। सो फॉर वी हैव डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमने इस चैप्टर थर्ड सेल जो हम पार्ट्स सेल का जो पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो थर्ड पॉइंट जो ये न्यूक्लियस है वो हमने डिस्कस किया। ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। हम क्या स्टार्ट करेंगे अभी? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, दैट विल बी डिस्कसिंग नाउ।